এদিন গঙ্গাসাগর পুণ্যস্নান উপলক্ষে বাবুঘাটে আয়োজিত সাহু সমাজ কল্যাণ সমিতির ক্যাম্পের জন্য সাহু সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে টলিগঞ্জে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে আয়োজিত এই সেবা প্রদানকারী ক্যাম্পে গঙ্গাসাগর যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে এদিন আগত অতিথিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনও করা হয়। এদিন এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এমএমআইসি তারক সিং, সাহু সমাজ কল্যাণ সমিতির অধ্যক্ষ এবং 117 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিত সিং, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট রূপচাঁদ প্রসাদ, কলকাতা সাহু সমাজের সভাপতি ভগবান দাস আরিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল তৈলিক সাহু সমাজের পলিটিক্যাল উইংস দুর্গা প্রসাদ, বউবাজার সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ শাও, সেক্রেটারি সঞ্জিত শাও, জানবাজার সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট রাজকুমার শাও, সেক্রেটারি রাজেশ শাও, সাহু বন্ধু হাওড়ার প্রেসিডেন্ট অশোক শাও, সেক্রেটারি মুন্না শাও, মনোজ শাও, সন্তোষ শাও, রঞ্জিত শাও, শোভাবাজার সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট সুজিত শাও, সেক্রেটারি বিশ্বনাথ শাও, সল্টলেক সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট গণেশ শাও, সেক্রেটারি দিলীপ শাও, বাংস সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট সুরেশ গুপ্তা, সেক্রেটারি বিজয় শাও, তপসিয়া তিলজোলা সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট দয়াচাঁদ শাও, সেক্রেটারি ধনঞ্জয় গুপ্তা, সাহু বিকাশ সংঘের প্রেসিডেন্ট বিজয় গুপ্তা, সেক্রেটারি সঞ্জয় শাও, মাঠপুকুর সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট রাকেশ শাও, সেক্রেটারি লখনদেব শাও, বেলেঘাটা সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট সুরেন্দ্র শাও, সেক্রেটারি রতন শাও, নারকেলডাঙ্গা সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট দীপেন্দু শাও, ক্যালকাটা সাহু বিকাশ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ভোলা গুপ্তা, সেক্রেটারি প্রদীপ শাও, ক্যালকাটা সাহু বিকাশ ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট প্রদীপ শাও, সেক্রেটারি রাকেশ শাও, ভবানীপুর সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট শিবশঙ্কর গুপ্তা, সেক্রেটারি দেওনাথ প্রসাদ, ক্যালকাটা সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট ভগবান দাস আরিয়া, সেক্রেটারি দুর্গা প্রসাদ শাও, রাজেশ কুমার শাও, চন্দন শাও, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের সেক্রেটারি শিবশঙ্কর গুপ্তা, হাওড়া ভারতীয় সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট অনিল শাও, মধ্য কলকাতা সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট গোবর্ধন শাও, সেক্রেটারি সন্তোষ গুপ্তা, গার্ডেন ব্রিজ সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট ধর্মেন্দ্র কর গুপ্তা, বাঁকড়া সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট শম্ভু শাও, সেক্রেটারি রাজকুমার শাও, ভারতীয় জন সেবা হাওড়ার প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত শাও, বালি সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট চন্দন শাও ছিলেন। সাহু সমাজ কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি নকুল শাহ, জয়েন্ট সেক্রেটারি কিষান শাও, বালেশ্বর শাও, ভাইস প্রেসিডেন্ট শঙ্কর শাও, অনিল শাও, ট্রেজারার अर्जुन शाव, वरिष्ठ भीम शाव, लालबाबू गामी, कमलेश्वर सिंह, महिला संगठन प्रेसिडेंट प्रियंका शाव, सरिका गुप्ता, मीना गुप्ता, निवेदिता शाव, किरण देवी, बेबी देवी, नीतू गामी, रानी शाव उपस्थित छिलेन, उदय शाव, सुजीत शाव, संजीत शाव, राजकुमार शाव, अशोक शाव, हावड़ा, संतोष गोल्ड, अभिषेक शाव, विजय गुप्ता, राकेश शाव, प्रदीप शाव, मुन्ना शाव, धर्मवीर शाव, रंजीत शाव, अजीत शाव, सामाजिक कमिटिर सिनियर सदस्य अजीत शाव, शंकर शाव, अर्जुन शाव, भीम शाव, नकुल शाव, बालेश्वर शाव, गंगो शाव, लालबाबू शाव, कामेश्वर सिंह, राजेश सिंह, ओम प्रकाश जायसवाल, किशन शाव, गोपाल शाव, गोविंद शाव, चंदन शाव, रामचंद्र शाव, नवीन शाव, शिव शाव, पियास शाव सह समाजेर अन्यान्य सदस्यराও। খুব ভালো, এরা ভালো লোক বলে ভালো কাজ হচ্ছে, আরও ভালো হবে। আর তোমরা ভালো করে লোককে বোঝাও, ভালো করে তোমরা ডিসপ্লে করো সব জায়গা যা খবর করছো, যাতে আরও বেশি করে মানুষ যায়। এরা শুধু সাহু সমাজের জন্য করছে না, এরা বলেছে সবার জন্য করছে। তো সবার জন্য করছে, তাহলে সবার সহযোগিতা করা উচিত। তো তোমরা তো টাকা পয়সা দেবে না, তোমরা তোমাদের প্রেস থেকে ভালো করে প্রচার করে দিও। এবারেও থাকবে, এবারেও থাকবে। এই তো বোধ হয় 2-4 দিনের মধ্যে ব্রিজেরও উদ্বোধন, মানে এই শিলান্যাস হয়ে যাবে। 2-3 বছরে ব্রিজে হয়ে যাবে। সবাই তো আমাকেই শুভেচ্ছা দিল, আমি আর কি দেবো, আমি তো নিজেই ধার নিয়ে যাচ্ছি। अच्छा है, आप लोग भी करो ना और जुगाड़ करके इनका साथ जोड़ो, आदमी को वैसा प्रचार करो कि इनके साथ और भी लोग जुड़े जाए। अरे यार, हम तो है ही इनका साथ में, तुम लोग हो, आप हो ना, मुंह से बोलो कम से कम। हाँ हाँ, शाबाश। तो हम भी है, मिल के करेंगे। ये नया कुछ नहीं है, हर साल होता है और बढ़ चढ़ के ही होता है। हर साल जब आप लोग पहुँचिएगा कुछ नया और कुछ बढ़ के ही होता है।
तो हम इसीलिए हम इनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये समाज के लिए काम करते हैं और ये सब वर्ग के लिए काम करते हैं। तो ये हम लोग के लिए, एक तो बंगाल में जो हम लोग रहते हैं सब एक साथ मिल के रहते हैं, ये हम लोगों का एक जो बोलते हैं संस्कृति है, ये यहाँ का पहचान है, वही ये साहू समाज के द्वारा चल रहा है। तो इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जो इनका प्रयास है ये हमेशा इस तरह से आगे बढ़े और अच्छी तरह से चलता रहे। धन्यवाद। संदेश ऐसा हुआ कि हम लोग को लास्ट ईयर जो है टोटल साहू समाज के तरफ से 6 जो है सेवा शिविर लगा हुआ था, जिसमें 4 तो हम लोगों का बहुत पुराना है, बहुत कई सालों से चल रहा है, करीब 40-45 सालों से सेवा वो दे रहे हैं। तो आज से हम लोग को 2 नया जो सेवा शिविर के लिए, एक मेडिकल के लिए मेडिकल कैंप का जो है ना, अस्थायी अस्पताल का जो हम लोग को मिला हुआ था परमिशन, और दूसरा जो है एक जो भी श्रद्धालु आते हैं उसके ठहरने और खाने की व्यवस्था के लिए 2 कैंप हम लोग को अलॉट हुआ था। तो वाला जो मेडिकल कैंप जो हुआ था हम लोग का पश्चिम बंगाल साहू समाज के तरफ से हुआ था, को मिला था, और दूसरा जो है सेवा शिविर लगाने वाला जो है ये हम लोग को साहू समाज कल्याण समिति टालीगंज को मिला। तो समय का इतना अभाव था कि जिस समय हम लोग को जगह अलॉटमेंट किया गया था उस समय प्राय जितने शिविर लगने थे जो तीर्थयात्री आएंगे उस समय सभी का काम पूरा हो गया था। हम लोग अंत में ये चांस मिला, तो उस चांस को जो है हम लोग जिस तरह से सोचते थे उस तरह से हम लोग उसको निभा नहीं पाए। मैंने खूब बढ़िया से हम लोग चाहते थे कि उसको हम लोग कैंप बहुत सुंदर हो, जितना बढ़िया से बढ़िया और सेवा हम लोग दे सके। हम लोग को मात्र 3 या 4 दिन का समय मिला, तो इसीलिए आज हम लोग मीटिंग बुलाए थे कि जो पिछले साल जो हम लोग को अल्प समय में इतना बढ़िया हम लोग काम किए, अभी हम लोग को समय काफ़ी मिल रहा है और हम लोग का कैंप का उद्घाटन 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक चलेगा। तो हमारे 7 दिन का जो है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो भी तीर्थयात्री बाहर से आएंगे उनको हम लोग सेवा प्रदान कर सकें। धन्यवाद। ना बिल्कुल प्लानिंग तो देखिए हम तो रहेंगे, हम ही का मैंने पूरे हमारे पश्चिम बंगाल के जो कार्यकारी के समिति के लोग हैं वो लोग भी साथ में हैं। हमारे ये धनंजय जी है, भगवान बाबू है, मनोज जी है, सब लोगों का मैंने एक साथ मतलब कि सभी लोग जुड़े रहते हैं इसमें। और सभी के हम लोग दायित्व तो ये मानते हैं कि कहीं पर कोई असुविधा हो गया, कहीं हम लोग का सेवा शिविर में किसी तरह का गलतफहमी हुआ, कोई गड़बड़ी हुआ तो हमारा समाज का उसमें बदनामी होगा। इसीलिए जो भी हमारे कार्यकर्ता बोलिए सब लोग उसमें जो है तन मन धन से लगे रहते हैं। हमारे अशोक जी जो है हावड़ा साहू समाज से हैं, सभी लोग उसमें सेवा देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। साहू समाज का जो प्रोग्राम हुआ कलकत्ता साहू समाज का ही सहयोग का है, मैंने ये अपना भी प्रोग्राम करेंगे। सब लोग हम लोग एक साथ मिलकर गंगा सागर के कैंप को हम लोग अच्छे तरीक़े से चलाएंगे, समाज की सेवा करेंगे। ये संकल्प लेने के लिए हम लोग आज मीटिंग किए थे। आज हम लोग का संकल्प में सभी लोग सहयोग दिए। सभी लोगों का ये था, इसमें हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष रूपचंद साहू जी एवं भगवान दास आर्य जी, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष विजय जी, तपस्या तिलजला के धनंजय जी एवं सभी साहू समाज के कई संगठन के लोग अध्यक्ष सेक्रेटरी आए हुए थे। एवं हमारे MMIC तारक सिंह जी भी आए हुए थे। उन्होंने जता सहयोग करने का उन्होंने वादा किया एवं हम लोग जो सहयोग कर रहे हैं उन्हें हम लोगों को उनमें अच्छा लगा और आगे हम लोग के साथ चलेंगे। उन्होंने आज तो हम लोगों का ये दूसरा प्रोग्राम है गंगा सागर शिविर, और हम लोग का यहाँ पे उपस्थित हमारे पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट, उनको आप भामाशाह भी बोल सकते हैं, उनका उपस्थिति हम लोग का जो है शिविर का शुभारंभ और समझ लीजिए प्रारंभ और ख़त्म सक्सेसफुल का माने गरिमा उदाहरण हो गया है। और इतना आदमी करीब धर लीजिए 250 आदमी हम लोग का यहाँ उपस्थित थे।
महिलाएं 100 से भी ज़्यादा थी महिलाएं। ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये 17 तारीख का प्रोग्राम इसलिए किए हैं कि हम लोग जो आगे साल गंगा सागर शिविर किए थे, उसमें हम लोगों का क्या त्रुटियाँ हुई या क्या अच्छा हुआ, या उसको किस तरह से फिर संशोधन करके फिर से उसको नया तरीका से किया जाए, इसके लिए 17 तारीख को किए थे ये प्रोग्राम आज। और 10 तारीख से 16 तारीख हम लोग का बाबूघाट आउटलेट ग्राम ए में घाट में प्रोग्राम है गंगा सागर शिविर का। उसमें 10 तारीख को महिलाएं लोग जो है हवन करेंगी। सब टोटल महिलाएं पीला वस्त्र पहन करके अपना हस्बैंड वाइफ जो है माँ गंगा का आह्वान करेगी, और आह्वान करने के बाद ही हम लोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। दूसरा बात है क्या कि हम लोगों का जो शिविर है 10 तारीख से 16 तारीख है, और सभी संस्थाएं जो देखें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और सभी संस्थाएं जो है ऐसा हुआ जो मेरे पास डेट नहीं रहा, जो कुछ संस्थाएं जो है उसको मर्ज करना पड़ा, क्या है कि भाई उसके साथ वो मर्ज हो जाए। तो ये आप लोगों का और बाबा कपिल मुनि का आशीर्वाद है, जो हम लोगों का इसे बाबूघाट आउटलेट में 8 संस्थाएं हो गई है साहू समाज का, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और बढ़ता ही जाएगा। और हम लोग एक अच्छा काम करते हैं, और ये सेवा जो है इससे क्या होगा, हम लोगों का पीढ़ी भी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। आज टालीगंज साहू समाज कल्याण समिति में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नकुल जी और चाचा भतीजा का ये समाज, साथ में सचिन सिंह जी का देख रेख में अध्यक्षता में बहुत अच्छा फल फूल रहा है। हम लोग का भी इसमें हमेशा योगदान बना रहेगा। और ये अभी अगला साल से कैंप का उद्घाटन किए थे। 3 दिन के अंदर ये कैंप का उद्घाटन करके सेवा प्रदान करना बहुत बड़ी बात थी। उसमें नकुल जी खरे उतरे हैं, और इस तरह से सेवा प्रदान करते हुए एक अपना वक्त समाप्त करता हूँ। नमस्कार, हम लोग बाली साहू समाज के कार्यकर्ता लोग हैं। हम लोग टालीगंज कल्याण सेवा समिति में हम लोग आए हैं। उनके द्वारा गंगा सागर ओपनिंग का प्रोग्राम किया गया था। उन्होंने हम लोग के सहयोग रहा। हम लोग भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग संग में चल रहे हैं। गंगा सागर में सेवा शिविर में हम लोग उनके साथ साथ रहेंगे। नकुल जी का जो आज प्रोग्राम हुआ है बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, ठीक है। और हम लोग साहू समाज, जैसे पहले कलकत्ता साहू समाज को जानते थे, आज साहू समाज में जैसे 6 संस्था जैसे काम कर रहे हैं। इसी तरह और आगामी दिन बढ़ते जाएंगे, साहू समाज का नाम रोशन होते रहेंगे। कलकत्ता साहू समाज कल्याण समिति टालीगंज आगे बछर भाती ए बछर गंगा सागर सेवा शिविर तीर्थयात्री सेवा शिविर एक आयोजन हो। अगले साल भी यहाँ पे एक बहुत कम समय में बाबूघाट में एक जगह मिला, जो कि खूब कम समय में ही उस इतने बड़े कार्य को करने सका। और उसके बाद आज जो है पूरे पश्चिम बंगाल के जितनी भी संस्थाएं थे सभी को साहू समाज कल्याण समिति टालीगंज की तरफ से निमंत्रण किया गया। सभी उनके निमंत्रण आह्वान पर सब आए। हम लोग एकजुट हुए होकर के इस कार्यक्रम 7 दिवसीय प्रोग्राम को किस तरह से करना है, किस तरह से जितना भी सेवार्थी पूरे भारतवर्ष से विदेशों से जो आते हैं उनका सेवा देना चाहिए, उस पर एक विचार विमर्श बनता है। उसी पर हम लोग आज विचार रखें, क्या किस दिन क्या सेवा है, क्या खिलाना है, कैसे रखना है, सेवार्थी को किस तरह सेवा देना है। बगल में पश्चिम बंगाल का मेडिकल कैंप है, उसके साथ में योगायोग मिलाकर किस तरह से दिया जाए, कौन कौन संस्थाएं किस किस दिन क्या सेवा देगी। बहुत ही सुंदर तरीके से आज यहाँ संपन्न हुआ। आज की अध्यक्षता मेरे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष महोदय श्री रूपचंद प्रसाद जी किए, और टालीगंज के यहाँ के MMIC
तारक सिंह जी और उनके सुपुत्र श्री रमेश सिंह जी की उपस्थिति रही और लगभग 25-30 संस्थाओं के सभी गण्यमान्य व्यक्ति जो अपने अपने कार्य पर कार्यरत हैं, सभी का यहाँ पर आज आगमन हुआ। बहुत ही अच्छा लगा कि एक संस्था को कंधे पर जो भार मिला वो सब मिल करके अपना अपना कंधा लगा दिया। मानो ऐसा लगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम कुछ है ही नहीं, सब छोटा प्रोग्राम के रूप में बन करके सब अपने अपने कंधे पर ले करके, जिस तरह हम लोग एक भाषा बोलते हैं 10 की लाठी 1 की बोझा, यहाँ हम लोग को देखने को मिला। एक बड़ी बोझा है, सब अलग अलग लाठी उठा लिया, बोझा खत्म भी हो गया और बेड़ा पार भी लग गया। उसी तरह से आज टालीगंज में देखने को मिला और इसका उदाहरण कलकत्ता साहू समाज तो आगे से करते आया, उसी का हिसाब किताब से यहाँ भी आज बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लिए हैं। और कलकत्ता का भी जो प्रोग्राम कुछ दिन पहले एक ऐसे ही प्रकार का प्रोग्राम हुआ, वहाँ का भी ग्रांड सक्सेस प्रोग्राम का दिन तिथि हुआ कि वहाँ का भी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से सबने भान उठा लिए। आज हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 40-45 संस्थाएँ हैं और आज बाबूघाट में साहू समाज का सब मिला करके 6 वो कैंप है। बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस साहू परिवार में जन्म लिए हैं इस, और आज ऐसे ऐसे कार्य करने का हम लोग को मौका मिल रहा है। इसलिए मैं जितने भी यहाँ पर महानुभाव आए थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तोपसिया जिला साहू समाज के सचिव के नाते, और मैं मेरा विशेष लगाव नकुल जी से रहा, इसी नाते मैं यहाँ पर आकर के विशेष रूप से मैं भी तन मन से साथ दिया और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यहाँ का प्रोग्राम ग्रांड सक्सेस होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होने जा रहा है। धन्यवाद जितने भी साहू समाज के आए हुए हैं सभी को धन्यवाद, और मीडिया प्रभारियों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उससे क्या क्या कैसा लग रहा है आज जो गंगा सागर जो मेला होगा उसके बाद कुंभ में बहुत बड़ा जो हिंदू का सनातनियों का एक साथ में जमावड़ा हुआ, उसके बाद में ये जो 5 लोग को खंड जो गीता पाठ हुआ, उसके बाद में हिंदू लोगों का और जो सनातनी का एक बड़ा महायज्ञ हो रहा है। सही बात है, गीता पाठ हुआ, ये हम लोग इतना सोचे नहीं थे, आप विश्वसनीय हुआ। मतलब इतना जो क्राउड हुआ वो जो है दिमाग से परे, तो हमें लगा कि नहीं, हिंदू जो है सनातनी जो है खूब आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और देखिए हम लोग जो गंगा सागर शिविर जो लगाते हैं, तन मन धन, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, और अगर किसी का तबीयत खराब हुआ उसको मेडिसिन, और ज़रूरतमंद का अगर हम ज़रूरत पूरा कर दें, ना कोई मंदिर जाने का दरकार है, ना मस्जिद जाने का दरकार है, ना चर्च जाने का दरकार है। ये बहुत बड़ा धर्म है, ये भी बहुत बड़ा गंगा सागर का सेवा है। बस इतना ही कह करके अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज के डेट में हम लोग का हर साल की तरह आज भी इस साल भी गंगा सागर में जो कैंप लगने जा रही है, 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक लिए सेवा होता है। उसमें हम लोग सभी सहयोग करते हैं, सभी की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाते हैं। जितना आशीर्वाद मिल सके ऊपर वाला का आशीर्वाद से, जितना मेरे पास है सक्षम है, सब हम लोगों को साहू समाज के जितना है उससे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी उत्साह मनाते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक की सेवा है हम लोग का है। हम लोग बाली समाज से हैं, सभी आदमी मिल कर के सेवा में लगे रहते हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश, बहुत खुश। सबसे पहले आज की ये जो सभा साहू कल्याण समिति की अध्यक्षता में नकुल भैया और सभी गणमान्य साहू सदस्यों के उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया है। देखिए, सेवा कर जो गंगा सागर में जो हमारा कैंप जो पिछले वर्ष लगा था और इस साल फिर से दोबारा होने जा रहा है, तो साहू समाज की सेवा तो पूरे पश्चिम बंगाल में फेमस है ही। उसी के साथ जैसे सेवा हमारा जो अभी समाज जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में पूरे देश भर में विस्तृत हो रहा है, तो सेवा के लिए दिन की कमी पड़ जाती है, संस्थाओं और लोगों की कमी नहीं पड़ती है। उसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सेवा का जो ये जो कार्यक्रम जो हम करते हैं, मैं एक ही संदेश, ज़्यादा कुछ नहीं बोल करके थोड़े में बोलना चाहूँगी कि देखिए,
समाज में बड़े जो भी मतलब धन से जो भी लोग संपन्न हैं, तो सबसे पहले तो जो लोग सेवा देने आते हैं, तो मैं एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी साहू बंधुओं से कि जो लोग भी तन मन धन जिस भी ढंग से आते हैं, सम्मान शिविर में, चाहे तीर्थयात्री हो, चाहे जिनका सेवा शिविर हो, सभी के हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान बनाए रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता ये करते हैं। जो भी हमारे मीडिया प्रभारक है, आप लोग को भी आमंत्रित करती हूँ कि शिविर में ज़रूर आइएगा और तीर्थयात्रियों के साथ जो भी सेवा का कार्यक्रम में हम लोगों के साथ दीजिएगा। और सभी संस्थाएं मिलकर के ये जो सेवा का कार्यक्रम करने जा रही हैं, सभी संस्थाओं को मैं टालीगंज के तरफ से, सभी साहू बंधुओं के तरफ से असंख्य धन्यवाद प्रणाम जनाती हूँ। इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। बोलिए ना। बहुत बहुत उत्साह के साथ आज टालीगंज सेवा कल्याण समिति का गंगा सागर सेवा शिविर के लिए ये आयोजन हुआ है, एक रूपरेखा बनाने के लिए। मैं टालीगंज साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद एवं अग्रिम बधाई देना चाहूँगी कि पिछले साल ही उन्होंने इस सेवा कैंप की शुरुआत की थी और आज इतना बृहद रूप लेकर आज दूसरी बार फिर से सेवा कैंप का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और गंगा सागर सेवा शिविर में तो हमारे साहू बंधु कई सालों से सेवा दे रहे हैं। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस सेवा शिविर के में उपस्थित होकर सेवा दे पाते हैं। आप सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हमको तो बहुत अच्छा लगा। साहू समाज कल्याण समिति जितना आगे बढ़े उतना खुशी की बात है। थैंक यू। अच्छा लगा। टालीगंज कल्याण समिति समाज से बहुत सब कुछ अच्छा लगा और इससे और अच्छा और होना चाहिए और सभी लेडीज़ मिलकर आगे बढ़ाना है इसको। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के बहुत घर से निकलने के बाद थोड़ा अलग ही खुशी होता है। ऐसा मिल के और अच्छा लगा। थैंक यू। इसमें जो समाज सेवा में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी हम लोग को भी अवसर मिला है समाज सेवा करने के लिए। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। और हम लोग टालीगंज से इसमें इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सभी महिलाएं मिलके एकजुट होके सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। हम लोग सब मिल के पूजा करेंगे और एक साथ मिलके जुट होकर सब अपना कार्य को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।